Good evening, everyone. A warm welcome to all the learners joining us today. We are excited to continue our exam prep workshop series brought to you by Team Udan. This is our third session in this series, where we invite one topper for each subject to guide us with smart learning techniques that actually work in the exam process. My name is Bhavya, and I'm your host for the evening. It's wonderful to join you all in this enriching learning experience. Generally, in daily life, whenever someone's like right harm cause harm to another, like reckless driving or misuse of one's right, tort law came into rescue and provide us relief. And it protects our right to safety, reputation, property, peaceful enjoyment of life by ensuring that wrongdoers compensate the injured. In this slide, this session is extremely important because it helps us to understand the nuances of this subject, and we are honored to have Miss Varsha Tripathi with us today. She is 2025 graduate from the Faculty of Law, University of Delhi, and is currently practicing at the Allahabad High Court. Renowned for her academic depth, she will be guiding us through important basics we need to know, answer writing techniques, and a quick revision strategy that could fetch us more marks and for effective preparation. Thank you so much, ma'am, for taking time for us, and we are thrilled to learn from you. Now, I would like to introduce Mr. Abhinandan Kaul, our moderator for this session, who curated this discussion and started this initiative and will be leading the session forward. Thank you, Abhinandan. Thank you, Bhavya, for that good introduction, and glad to be here. And I think we took a small break because of some issues, due to which we Okay. couldn't hold more sessions. And as Bhavya mentioned, this session is going to be a part of Team Udan's exam prep workshop, wherein we are calling one topper each from each subject, so that we sort of all are first year students, so we don't know how to start and how to prepare for the various subjects in law. So it'll help us to sort of start our preparation. And I think there's only 15 to 20 days left for the exams. So such sessions are very important. Not it's important for Mm. me as well because I'm a first year student too. So yeah, I mean, thank you so much, Varsha, for joining us. And to each one of you, I'd also like to inform you that this is the third session in the entire workshop series. We did a first session on BNS, second session on jurisprudence, and the third session going to be on law of torts. So, without any further ado, I'll give the spotlight to Varsha, and we can start the entire session. And where after Varsha sort of explains to us how do we go about preparation and what are the things that we have to keep in mind. Then we'll have a short Q&A session as well. We'll keep it interactive, and even while Varsha is presenting, you all can sort of ask your queries, and it'll be preferred that while the presentation is going on at that time, आप सब लोग जो हैं chat box में queries को लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड देन उसके बाद जब Q&A शुरू हो जाता है तो फिर उस समय तो आप सब अपना माइक ऑन करके एक 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 करके अपने क्वेश्चंस बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं. सो ऑन टू यू वर्षा, स्टार्ट करते हैं सेशन को. Hi guys, am I audible? Am I audible, Abhinandan? या यू आर. यस. Okay. So, like, don't make it so much formal. Okay, one sec, I can't see. Okay, इतना formal नहीं करते हैं. Let's just light only. Hi guys, I'm Varsha Tripathi, your senior probably, currently practicing in Allahabad High Court. So happy to see you. Although cameras on नहीं है, so I can't see many of you. Thank you, Abhinandan. तुम दिख रहे हो, so it's nice. सब लोग Um, और ऑन कर सकते और हैं. अब और हाँ, I इंटरेक्टिव mean, रहेगा. if you इफ इट्स हाँ, पॉसिबल आप सब ऑन कर सकते हैं अपने कैमरास. एंड हाँ, यस यू कैन कंटिन्यू. तो yep, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. Thoughts. It's scoring, I'll tell you. Okay, let's talk as if a senior or a faculty person only as a normal. I'm telling you what are the tips because ज्यादा अगर मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइजिंग सब्जेक्ट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉट स्कोरिंग इसलिए है बिकॉज तुम्हें बहुत ज्यादा सेक्शंस नहीं याद करने की जरूरत है. पूरी स्टोरी तुम बिल्ड कर सकते हो. सबसे ज्यादा स्कोर फेच करोगे अगर तुम अपनी पूरा जो आंसर राइट करोगे उसको अगर तुम केस लॉस के थ्रू बिल्ड अप करोगे देन आई टेल यू कुछ पॉइंटर्स. मुझे मेरे पुराने नोट्स नहीं मिले सो बट स्टिल मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख लिए हैं.
या तो दो तरीके का है, सिंपल है। एक तो जिनको बहुत ज्यादा हाई स्कोर करना है, मतलब एकदम टॉप नॉच 70-60 प्लसेस में जाना है, और दूसरा नॉर्मल पीपल जिनको बस पास होना है। सो वी हैव द क्राउड ऑफ बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। सो बहुत ज्यादा जिनको करना है, देखो सिलेबस तो पूरा कवर करना ही पड़ेगा, सारी यूनिट्स कवर करनी है, छोड़ना एज अ डेड क्लॉक, यू कैन नॉट लीव इट। बट जो है बचा जितना है, आई मीन फॉर दोज जिनको ऐसे नॉर्मल नॉर्मल ही रहना है, ज्यादा लोड नहीं लेना, उनके लिए तो ठीक है, नॉर्मल सब्जेक्ट है, कर सकते हो लास्ट मिनट। 15 days इज इनफ, आई टेल यू, डोंट पैनिक, you have ample amount of time in hand. Second, do one thing. राइट, अपने के स्मार्ट के जो फ्रंट पेजेस होते हैं उनका प्रिंट आउट ले लो नॉर्मली। उसके बाद उसमें टॉपिक्स यूनिट वाइज, आई टेल यू, लीविंग एनी यूनिट इज डेडली, डोंट लीव एनी यूनिट। सारी जितनी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो सारी राइट डाउन कर लो। केस लॉज, क्योंकि टॉर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कोई भी और सब्जेक्ट होता, फॉर एग्जाम्पल बीएनएस होता, सो आई वुड हैव डेफिनेटली टोल्ड कि इसके आर्टिकल्स मेंशन करो, ये सब अलग अलग चीजें हैं। बट टॉर्ट्स के साथ एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज ये आ जाती है कि इसमें सेक्शंस बहुत ही कम है, तो मैक्सिम्स जितनी ज्यादा सी मार्क्स स्कोर करने के लिए ना, सम टाइम्स डीयू में आई टेल यू, रट्टा इज इम्पोर्टेंट। लॉजिक थोड़ा सा अगर कम भी लिखोगे तो चलेगा, बट मैक्सिम्स हाईलाइट करके मेंशन करना इट्स इम्पोर्टेंट। सो रट्टाफिकेशन वर्क्स, सी बहुत ज्यादा लोग ज्ञान देंगे तुमको रट्टा डजंट वर्क, बट इट डज, इट डज। सेकंड, स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट। सो मैं वन बाय वन आई टेल यू। इसमें ये है कि स्ट्रक्चर अपना, कोई भी आंसर जो है, पहले तो डू वन थिंग, नोट्स जितने भी हैं जिन्होंने अभी पहले से बनाए हुए हैं, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है, फ्रेंड्स वाले के यहाँ से वो ले लो, मिल जाते हैं। एंड एक आंसर हर जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल वाइकेरियस लाइबिलिटी है, या मतलब आई थिंक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव टू टेल यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आ जाते हैं उसमें, लिखे होते हैं सारे की। यूनिट 1 से अगर स्टार्ट करें हम, सो लेट्स सी, यूनिट 1 में मैक्सिम्स हैं, इंजूरिया साइन डैमनम, और जितनी और डैमनम साइन इंजूरिया जो भी मैक्सिम्स हैं वो कवर कर लो। यूनिट सेकंड में वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है, वो कवर कर लो। ये सारे ना आई टेल यू, इनको लिख लो एक जगह पे कि तुम्हें क्या क्या टॉप 5 तुम्हारे, सी जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, सो डोंट जस्ट गो अबाउट लाइक अभी 15 days यू हैव इन हैंड, सो डू वन थिंग, सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें कवर कर रहे हैं, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इट्स वीवीआईपी टाइप्स, उनको राइट इट डाउन, टॉप 5, जो कि क्योंकि पीवाईक्यू इज योर क्लोजेस्ट एली, आते ही हैं। तुम एक बार ही पीवाईक्यू गो थ्रू करोगे, एक बार तुमने पूरा एनालिसिस करो, पीवाईक्यू खरीद लो, एनालिसिस करो, एक साल 2020 2022 जितने भी मतलब पास्ट ईयर, रीसेंट, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर्स, तो तुम जब एक बार ही एनालाइज करोगे ना पूरा, सो उससे क्या होगा कि तुम एक पैटर्न देखोगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी पैटर्न फॉलो करती है। एक जो भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा, एक बार तुमने पूरा पेपर एनालाइज करा, सेकंड जब तुम पेपर एनालाइज करोगे तो तुम्हें दिखेगा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो पीवाईक्यू इज योर क्लोजेस्ट एली, उसको तुम नहीं कर सकते लीव। एक बार ही तुमने पीवाईक्यू एनालाइज कर लिया पूरा, सो अभी तुम्हें पैटर्न पता चल गया कि क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सो राइट इट डाउन इन अ डिफरेंट सेक्शन, दैट इज अ वीवीआईपी सेक्शन। तो 5 तुम पर यूनिट कौन सा अच्छा केस क्वेश्चंस किस तरीके के फॉर्मेट में आते हैं, वो ऐसे आते हैं दैट दिल गिव यू, बिकॉज इट्स योर फर्स्ट ईयर, आई टेल यू, पैराग्राफ में क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन देख के पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, वो तुम्हारा पढ़ा हुआ ही केस है, वो बस कहानी बता रहे हैं। सो पैराग्राफ क्वेश्चन आते हैं, जो केस तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उस वही केस आएगा, इट्स इन अ पैराग्राफ, ऐसा बड़ा सा इलिस्ट्रेशन दे देंगे, थोड़ा डरावना सा दिखता है वो। सो यू हैव टू, फर्स्ट यू हैव टू डू क्वेश्चन पेपर, देखो पेपर जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन दिखा, सो पीवाईक्यू जब तुम करोगे तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है। से पहले तो बहुत इजी था, क्वेश्चन पेपर अलग और आंसर शीट्स अलग अलग होती थी, बट नाउ यू हैव टू डू दिस जगल बैक, ऐसे वो वापस से अभी तुम्हारी आंसर शीट में ही प्रिंट होकर आएगा पेपर, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू लाइक ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तुम्हें पूरी शीट पलट के वापस से फर्स्ट उस पे जाना पड़ेगा। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली,
रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्या पढ़ना है एग्जैक्टली आई टेल यू वो भी, बट एग्जैक्टली आंसर राइट कैसे करना है दैट्स अ डिफरेंट ट्रिक। राइट कि जो एग्जामिनर ने पूछा है, तुम क्वेश्चन एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो यूल रियलाइज उसमें कौन सा टॉपिक, मतलब तुम्हारा पूछ क्या रहा है, वो एग्जैक्टली तुमसे क्या पूछ रहा है, वो तुम्हें एक बार ही पता चल गया तो तुम्हें, और अगर मतलब वो दैट्स अ प्लस ब्राउनी पॉइंट कि अगर तुम्हें वो केस लॉ याद आ जाए जिससे जिससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इन केस तुम्हें केस लॉ नहीं भी याद आता, या तुम एग्जैक्ट साइटेशन तुम्हें केस की नहीं याद आती, तो इट्स ओके। सी आई टेल यू फर्स्ट, मतलब डीयू में क्या है ना, सीन मुझे जितना 3 साल में पता चल गया है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा तुमसे रॉकेट साइंस पूछना चाहते भी नहीं है। दे जस्ट वांट यू टू रीड द केसेस प्रॉपरली, केस मैट को फॉलो करो। केस मैट में जितने केसेस लिखे हुए हैं उनको मिस एटलीस्ट नहीं करो। जितने केसेस केस मैट में दिए हैं वो तो तुम्हें करके ही जाने हैं, ये मान लो। अगर अगर मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जैसा सब्जेक्ट है तो बाद में उसमें 80 to 86 केसेस हैं। सो दैट्स अ डिफरेंट, दैट्स नॉट व्हाट आई एम आस्किंग यू कि भाई तुम 86 केसेस पढ़ के जाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई ऑल्सो नो, हम वहीं से ही पास आउट है। बट टॉट इसमें कुछ भी और नहीं पढ़ना अदर देन केसेस। सो वो तुम्हें पूरा वहां से पढ़ के जाना है। सर्कलिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग इज कि क्वेश्चन पढ़ो पास्ट ईयर पेपर से, तुम्हें एग्जैक्ट वो समझ में आ जाएगा। यूनिट वाइज आई टेल यू एग्जैक्टली वो भी कि कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक लेना है। बट पहले आई टेल यू कि एग्जैक्टली पीवाईक्यू में क्या देखना है तुमको। पीवाईक्यू उठाया, सबसे पहला प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप इज पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू उठाओ और क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो पूरे। इफ मतलब आई एम तो टेलिंग फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको मतलब बहुत ज्यादा हाई मार्क्स अचीव करने हैं, 15 दिन इज लाइक आई एम टेलिंग यू मोर देन सफिशिएंट टाइम। सो एनालाइज करो टॉपिक्स, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको वीवीआईपी सेक्शन में डाल दो, उनको लिखो। उसके बाद सेकंड मॉडरेट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद टर्शियरी इंपॉर्टेंट। मतलब बट तुम्हें कवर सब कुछ करना है, बिकॉज तुम फॉर श्योर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते फैकल्टी को लेके ना। इसकी चेकिंग तो भूल ही जाओ, चेकिंग पे तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस मत रखना। बहुत अच्छा पेपर देकर आओ और बहुत बुरे मार्क्स आए तो भी बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होना। दिस इज फैकल्टी, वो ऐसा करते हैं। सो प्लीज इट्स ओके। वो तुम्हें, लेकिन वो अच्छी बात ये है कि जो तुम्हारा बहुत बुरा पेपर गया होगा उसमें बहुत अनएक्सपेक्टेडली अच्छे मार्क्स भी दे सकते हैं। सो इट्स लाइक वो दैट्स अ पेंडोरा बॉक्स, दैट्स डिफरेंट। बट अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए आई टेल यू, प्रिपरेशन पीवाई क्यू तुमने एनालाइज कर लिया पूरा। सेकंड, इस सेक्शंस एलोकेट कर दिए। अब तुम्हारा फर्स्ट गोइंग बैक टू वीवीआईपी सेक्शन में जाते हैं। तो उसमें यूनिट 1 में फॉर एग्जांपल तुम गए, तुमने मैक्सिम्स कवर कर ली, इंजूरिया साइन डैमनम और ये डैमनम साइन इंजूरिया जो भी है। किसी का कैमरा आई थिंक ऑन है क्या? Yeah. I'll shut it. नेवर माइंड। Yeah, One it second. I'll seems just. like yeah. Yeah, you can continue. So यूनिट 1 में फॉर एग्जांपल तुमने यूनिट 1 में तुम मैक्सिम्स कवर करोगे। तो ओके, या मैक्सिम्स कवर कर ली, इंजूरिया साइन डैमनम। सो यहाँ पे भी अभी सीन है, कुछ केसेस हैं जो वेस्ट के हैं और कुछ केसेस हैं जो सिमिलर लॉजिक पे बेस्ड इंडियन केसेस हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, भीम सिंह का केस है फर्स्ट, उसमें ये मैक्सिम से रिलेटेड इंजूरिया वेस्ट के केसेस लिखने हैं, कंटेम्प्ररी इंडियन केसेस भी मेंशन करने हैं। जितने भी केस मैट में केसेस हैं तुमने केसेस को एलोकेट कर लिया, केसेस एलोकेट कर लिया जो भी है। यूनिट 1 में गिव मी अ मिनट, या सो यूनिट 1 तो सो ही है। आई मीन इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप। नॉट दैट आई एम सेइंग कि तुम छोड़ के जाओ, बट इसमें तुम्हें मोस्टली मैक्सिम पढ़नी है। मैक्सिम आएगा क्या, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। इसका आएगा रॉन्गफुल एक्ट, इंजूरिया साइन डैमनम, यस, उबी जस्ट इबी रेमिडम, ये आएगा। सो इसमें के जो भी हैं, अभी देखो वाइट वर्सेस जॉन है, टाउन एरिया वर्सेस कमिटी है, ये तो तुम लिखोगे। एशबे वर्सेस वाइट है, ये लिखोगे तुम। इसके साथ लिखोगे भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
अभी और इंडियन केसेस जो करंट सेम लॉजिक पे बेस्ड है, इंडियन केसेस भी लिखो और उसको मेंशन कर दो ऐसे बाइफरकेट करके, सो दैट विल स्टैंड आउट एज एन आंसर. Answer structuring, I'll tell you later what exactly your answer should look like. That is a different ball game altogether. Sometimes your presentation in DU, I'm telling you, sometimes presentation is more important than the content. मतलब तुम्हारा content 1920 चलेगा, तुम्हारा अगर presentation अच्छा होगा तब. You get it? कि presentation का proper structure है इफ यू वांट टू स्कोर. एंड टॉट्स में पॉसिबल है, क्योंकि टॉट में यू सी, टॉट में तुम्हारा ये क्या है कि तुम्हारे पास कंटेंट ऐसा फिजिबल कंटेंट है, तुम कर सकते हो, इट्स डूएबल. इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें इतना ज्यादा कंटेंट है कि स्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन, इतना सब कुछ है कि तुम नहीं कर सकते. मतलब एक चीज लिखने जाओगे तो वो लेंथ बड़ी हो जाती है आंसर की. यू हैव टू फिनिश एक आंसर इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट्स डिफरेंट. बट टॉट में यू कैन. अगेन आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी मार्क्स तुम्हें, अच्छे मार्क्स जो तुम्हें स्कोर करने हैं, स्कोर इट इन फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स. इफ यू वांट टू लास्ट में, इफ यू वांट टू लाइक स्केल अप, क्योंकि लास्ट 3 सेमेस्टर दैट इज 4th 5th एंड 6th, उन सेमेस्टर्स में तो अच्छे मार्क्स मिलते ही हैं. रीजन बिकॉज क्योंकि वहां पे मूट कोर्ट आ जाता है. अगेन तुम्हारा सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, मीडिएशन आ जाता है, उसमें प्रैक्टिकल्स ज्यादा होते हैं, थ्योरी पेपर 50 मार्क्स का ही होता है. सो दैट इज मोर ऑफ योर लक. मूट में अच्छा टीचर मिल गया तो मिल गया जो मार्क्स देता है, नहीं मिला तो नहीं मिला. यू कैन नॉट कंप्लेन. तो लास्ट के 3 सेमेस्टर्स में इट्स नॉट लाइक कि तुम्हारी अपनी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, बस फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स तुम्हारी अपनी पोटेंशियल पर ही डिपेंड करता है. I'll tell you, I've seen so many students जिनके लास्ट में more than 60 to 65 खिंच गए. अब देखो 70 प्लस तो ड्यू देता नहीं है, बट I'll tell you 65 तक आ जाते हैं. और वो तभी आते हैं जब तुमने फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में अच्छा किया हो. एंड फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स के भी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में से आता है टॉट. किसी एक सब्जेक्ट में भी, फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्पनसेटिंग सब्जेक्ट है, किसी एक, अब देखो आईपीसी में, आई टेल यू, बीएनएस में तुम बहुत ज्यादा भी अच्छा करके, सीपीसी में तुम बहुत ज्यादा भी कितना अच्छा कर लोगे, तभी भी तुम्हारा एक लिमिट है उसकी. तुम कितना भी अच्छा कर लो, तुम बहुत अच्छा नहीं कर सकते, और उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं. तो सब्जेक्ट वैसा है. सीपीसी, आई मीन, you'll go and you'll see, I mean, अब आ गया सीपीसी तुम लोगों का, अभिनंदन, इज इट CPC अभी नहीं है. नेक्स्ट We have सेमेस्टर? BNS as of now. या सो सीपीसी में you'll see बहुत एफर्ट्स लगते हैं, डरा नहीं रही हूँ, टेलिंग यू. सो टॉट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो कि थोड़े से एफर्ट्स में यू कैन डू वेरी गुड इन दिस. बाद में जैसे जैसे लेवल अप होगा ना, सब्जेक्ट्स का डिफिकल्टी विल इंक्रीज ओनली. फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आर, फर्स्ट सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट में इफ यू सी कंपैरेटिवली, टॉट इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स व्हिच इज डूएबल, काफी डूएबल है. अगेन यूनिट 1 में तुमने मैक्सिम ले लिया, मैक्सिम इंडियन और ये केसेस कर लिए. यूनिट 2 में कंसेंट एज अ डिफेंस तुम लिखोगे, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया, इट्स देयर. वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया के एक्सेप्शंस यूल राइट इट डाउन. यूनिट 3 नेग्लिजेंस है. नेग्लिजेंस उसमें यूनिट 3 में आई थिंक नेग्लिजेंस इंपॉर्टेंट है. ओके, वेट वन सेक. या सो मीनिंग, डेफिनेशन, मैक्सिम्स नहीं छोड़नी है. Maxims and case laws is what taught is built around. तो मैक्सिम्स एंड केसेस, अपना पूरा आंसर, मेक श्योर कि तुम आंसर का कंटेंट जो भी बेस करते हो ना, तुम्हारा जो बेस है वो केस लॉस के थ्रू ही, यू विल टेल समथिंग. जो भी तुम्हें बताना है, जो भी क्वेश्चनर पूछ रहा है, क्वेश्चन में तुम्हें whatever it is, you have to relate it with some case and you have to then give it a theory. उस चीज से रिलेटेड जो भी तुम कंटेंट दोगे, it's an additional advantage if you'll quote from KSmart. KSmart में अगर अच्छी फैकल्टी एलोकेट हुई है अगेन, तो वो तुम्हें what they'll do is they'll give you markings. हर केस जब भी उसमें हर केस में, इंडिविजुअल केस में मार्किंग्स है, डिफरेंट डिफरेंट
और important lines. Um, am I audible? Yeah, you are audible. Yeah, you can continue. Yeah. Oh, Your voice was breaking a little bit. I guess some network issue, but say is it something. okay What? now? Yeah, it's fine. Yeah, Yeah. perfect. So हाँ या सो बेस क्योंकि जो भी है जो भी क्वेश्चन में पूछते हैं वो ऑब्वियसली कोई तो केस वो ऑलरेडी दे के रखा होता है उन्होंने तो उस पर्टिकुलर चीज को कोरैबोरेट करने के लिए यू नीड टू हैव डिफरेंट डिफरेंट केसेस की जो भी तुम कह रहे हो उस चीज को कोरैबोरेशन के लिए यू हैव नीड टू हैव एडिशनल केसेस यूनिट 4 it's Navashak yes another Abhinandan if it's okay can you just switch on your camera. Yeah. Just a second. I'll just switch it on. You can continue. Just take a minute. Yeah, sure. So, unit 4 में it's an important I'll tell you important units although मुझे लगता है कि तुम लोग को पता होंगी और important units मेरा तो काफी टाइम हो गया बट स्टिल मेरे जो क्वेश्चन पेपर मतलब जिस टाइम पे मैंने एनालिसिस किया था उस टाइम पे यूनिट 1 में ये maxim second this is voluntary non-fit injuria with exceptions this wasn't one of the important most topic unit 3 में negligence it's important but not it's not VVIP you can place it in another moderate wala section unit 4 nervous shock it's important definite question expect a definite question इस वाले में से इम्पैक्ट थ्योरी आता है लेमैन टेस्ट इसमें लिखना होता है प्राइमरी जो भी पर्सन अफेक्टेड है सेकेंडरी जो भी अफेक्ट हुआ है पर्सन उसके भी केस लॉज हैं बहुत सारे केस लॉज हैं हैम्ब्रुक वर्सेस स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंट केस था आई थिंक इसमें एक देयर वाज अ फीमेल जो कि she saw a kid was and she just saw that there's a lorry which is going to hit the child and उसकी वजह से नर्वस शॉक में चले गई सो उस वहां से दिस कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ है किस केस लॉ से इंट्रोड्यूस हुआ है ये यू नीड टू राइट इट डाउन इट्स इंपॉर्टेंट नॉट दैट आई एम सेइंग कि तुम्हें उसका वो जज मेंशन करना पड़ेगा या प्रॉपरली ईयर ऑफ साइटेशन मेंशन करनी पड़ेगी कर दो तो ऑब्वियसली इट्स एन एडवांटेज ओनली बट केस लॉ तो मेंशन करना ही है इसमें मैक्सिम नर्वस शॉक में प्राइमरी विक्टिम सेकेंडरी विक्टिम में पेज वर्सेस स्मिथ यूल राइट हैम्ब्रुक वर्सेस स्ट्रोक यूल राइट ये इंपॉर्टेंट कुछ केसेस हैं इंट्रोड्यूस जहां से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वो लिखना है अगेन यूनिट 4 इज दिस ओके यूनिट 5 में रिमोटनेस ऑफ डैमेज यस आई थिंक वेगन माउंट वाला केस वाज इन दिस वन ओनली रिमोटनेस ऑफ डैमेज इट्स एन इम्पोर्टेंट केस आता भी है मोर और लेस हर ही साल आया हुआ है so yeah again this is a very important unit natural and proximate cause ये causation ये egg skull rule it's an important topic कि क्या concept है क्यों मतलब if a person is has a fragile वो I mean person is sensitive already but you don't know you have to assume as if he's a perfectly capable human even if you hit the person this is what I'm saying egg skull rule is this if I'm not mistaken so उसमें क्या था you will be charged और liability जो है वो full ही impose होगी you have to mention this egg skull rule करके you have to make a heading and उसमें ये चीज तुम्हें mention करनी पड़ेगी कि what is this rule is about what exactly it dictates ये सारा चीज आंसर यूनिट 6 अगेन मैं आंसर स्ट्रक्चर का भी आई टेल यू यूनिट 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट मेरे टाइम पे भी आई हैव मार्क्ड इट इन अ ऐसा वीवीआईपी बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट ऐसा दो क्वेश्चन आल्सो समटाइम इट कम्स नो फॉल्ट लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी तीनों ही इट्स इंपॉर्टेंट समटाइम तो डिफरेंशिएशंस भी आ जाती हैं इसकी कि डिफरेंशिएट बिटवीन द टू इसके एक्सेप्शंस क्या है विज मेजर उसके अंदर के भी एसेंशियल्स सो इसमें यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट
बेस्ट थिंग इज कि प्रॉपरली बाइफरकेट कर सकते हो क्या क्या है, वन बाय वन, कि अगर आ गया क्वेश्चन, आएगा ही, तो उसमें क्या क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स मेंशन करोगे, एक्ट ऑफ स्टेजेस, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये सारे स्टेजेस, क्योंकि स्ट्रिक्ट ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंडिया का ही इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट है, तो उसमें यू हैव टू मेंशन प्रॉपरली कि इंडिया का इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके बाद में उस कौन कौन से केसेस से, श्री राम फूड फर्टिलाइजर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो अगर मेंशन कर दो। So unit 6 is that. Unit 6 is very, very important unit. Unit 8, defamation. Expect a question from this one also. And medical negligence, I've told. Vicarious liability. Vicarious liability, may I tell you, it's important because vicarious liability, there are two concepts. There's just this theory जो कि mentioned नहीं है, deep pocket theory. One sec. Yeah. Okay. So deep pocket theory, what deep pocket theory is about? Vicarious liability क्यों है? मतलब even though let's, इसमें one more thing that you can do is give contemporary examples. For example, अगर for example vicarious liability का example अगर तुम DMRC से relate कर सकते हो, Zomato illustration दे सकते हो, तो for example अभी current scenario में for example DMRC का ये freeloader bus services negligently jumped a red light and hit a guy. अभी उसकी लाइबिलिटी क्वेश्चन करोगे, द ड्राइवर वाज नेग्लिजेंट, ही वाज द वन हु कमिटेड द ऑफेंस, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल? डीएमआरसी इज रिस्पॉन्सिबल थ्रू vicarious liability because the driver is not like financially well off enough to pay. No, deep pocket theory here, the concept of deep pocket theory comes that who is financially capable of paying, who has more deep pockets, who can pay, because tort is all about money. It's like damages, liquidated damages, unliquidated damages. उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि तुमने उसको ऐसा जस्टिस दे आर नॉट सीकिंग जस्टिस, दे आर सीकिंग मनी. सो कॉम्पनसेट, हु इज capable of compensating the one, obviously जिसके पास है. तो so now the concept of vicarious liability goes into कि DMRC is liable to pay. बिकॉज अब इसके भी तुम्हें एसेंशियल्स लिखने हैं. एसेंशियल्स में ऐसे डाल दो कि एग्जिस्टेंस थी, रिलेशनशिप था प्रॉपरली डीएमआरसी और उस ड्राइवर का, उसने कोर्स ऑफ मतलब ही कमिटेड द ऑफेंस व्हाइल ही वाज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अनदर कि कनेक्शन था प्रॉपरली, मतलब उसको जहां से जहां तक जाने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट था, उसने उसी टाइम फ्रेम में ये ऑफेंस कमिट किया. एंड उसके बाद तुम उसका कंक्लूजन दोगे कि हेंस ये मोस्टली क्वेश्चन जैसे आते हैं दैट एज एन एडवोकेट राइट योर ओपिनियन अबाउट इट, हाउ विल यू डिफेंड हिम, और हाउ विल यू से लाइक गिव कोराबोरेटिंग केसेस कि इस केस में अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो इसके डिफेंस में तुम एज एन एडवोकेट क्या करते. तो यहाँ पे अगेन कंक्लूजन इज अ ब्राउनी पॉइंट, आई टेल यू. राइट कंक्लूजन इन ईच ऑफ योर आंसर. स्ट्रक्चर में वो भी आएगा. स्ट्रक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट. बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं इस चीज को, बट आई टेल यू स्ट्रक्चर ऑफ एन आंसर, कि तुम किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स तुम्हारा कंटेंट क्या होता है ना, कंटेंट मोर और लेस सब वही पढ़ के जा रहे हैं, बट किसी कोई बहुत ज्यादा स्कोर कर रहा है और किसी के ऐसे ओके स्कोर है. रीजन बिकॉज दे नो प्रेजेंटेशन पॉइंट्स. अगेन कंक्लूजन, हर क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना है. गो बैक टू द क्वेश्चन कि उसने पूछा क्या था, कंक्लूडिंग लाइन फर्स्ट, कि जो भी उसने क्वेश्चन पूछा था उसमें कंक्लूडिंग लाइन राइट इट डाउन प्रॉपर्ली कि ये पूछा गया था. एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर कोई लीडिंग जो क्वेश्चन में पूछा गया है केस, फॉर एग्जाम्पल जिसका भी पैराग्राफ, जिस भी केस से उठा के पैराग्राफ तुमको दिया है, वो केस प्रॉपर्ली मेंशन करके, अगर पता है तो, अगर नहीं पता या फिर लेट्स से बहुत सारे केसेस एक दूसरे में जिंगल अप कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग कंक्लूजन लिख के प्रॉपर्ली व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, वो तुम्हें प्रॉपर्ली स्टेट करनी है. दैट इज इट. सेकंड मैंने सोचा था, आई टेल यू समथिंग.
fast forward. Yeah, I'll just switch the camera. I'll show you ऐसे cases याद करने हैं तुम्हें exactly. Yeah. So write down this is IPC का. I'll tell you. Don't mind my handwriting. So you have to like cases लिखो, ढेर सारे cases. याद कैसे होंगे? ऐसे याद होंगे. This is how you remember a case. You'll write down the topic. You'll write down the cases and very shortly, very in a very crisp form, write down कि किस चीज से रिलेटेड है, किस सेगमेंट से रिलेटेड है एंड एग्जैक्टली उस क्वेश्चन का रेशियो क्या था. सो राइट डाउन वट एवर इट इज, बहुत ही छोटू में लिख लो कि क्या 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 हुआ था. एंड देन एंड दिस इज हाउ, क्योंकि एग्जाम में भूलता बहुत ज्यादा है. तुम तुम्हें ऐसा लगेगा एग्जाम के जस्ट 5 मिनट पहले भी कि तुम्हें केस याद है, बट वो एग्जाम में when you'll go and the answer sheet comes, ऐसा अचानक से first name goes somewhere and the second party ka name goes somewhere. If lucky enough, if it's always against Union of India or some state, but when it comes to party names, you'll see it just vanishes up. So don't just, अगर तुम्हें, you have to be very sure कि तुम्हें cases ना भूले. Just close your copy and recite every case कि हाँ ये case का नाम तुम बिना देखे ही बोलो, तभी ही याद होगा. That's the key to it. And एक चीज नहीं याद होती है, ऐसा उसका ना, मेक बंच ऑफ इट. एक टॉपिक से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, मेक अ बंच ऑफ ऑल दोज केसेस. एक से रिलेटेड तुम्हें दूसरा, दूसरे से रिलेटेड तुम्हें तीसरा याद आना चाहिए. एक साथ सारे याद आने चाहिए जितने भी लिखे हैं. चार, इफ लेट सपोज तुमने 4 केसेस मेंशन किए हैं, उनमें से एक तुम इलाबोरेटिव मेंशन करोगे, बाकी उसके पॉइंटर्स लिखोगे. नाउ केस राइटिंग अगेन, स्ट्रक्चर. पूरी आंसर शीट स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए. आंसर शीट, आंसर एक लेट्स इन अ पर्टिकुलर आंसर ऑल्सो, जो तुम केसेस लिख रहे हो, जो केस तुमने कोई भी केस मेंशन किया है, केसेस में भी कैसे करोगे? पहले तुम फैक्ट्स लिखोगे. फैक्ट्स लिखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स ऑप्शनल, एब्सोल्युटली ऑप्शनल. कहानी बताने की कोई भी जरूरत नहीं है. लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी नहीं पढ़ता और उनको इंटरेस्ट भी नहीं है. दे डोंट वांट यू टू राइट फैक्ट्स, they want you to write observation, issues, observation, ratio. और अगर तुम्हें बहुत enhance करना है अपना आंसर या केस, तो तुम्हें क्या ऑपोजिंग जो ऑपोजिट पार्टी है उसने अपनी आर्ग्यूमेंट्स क्या दी थी, अगर कोई बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट दी थी तो वो, नहीं तो अगर ऐसा माइनॉरिटी का कोई जजमेंट है तो वो. दीज आर ऑल्सो ऑप्शनल पॉइंट्स. बट वॉट इज साइन क्वा नॉन इज कि तुम इशू लिखो, एग्जैक्ट क्या क्या इश्यूज, किस केस के बारे में तुम क्या बात कर रहे हो, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कॉपी पे, कि सो दैट द पर्सन हु चेक्स योर कॉपी, उसको हो कि भाई ये मतलब इसने बहुत ऐसा रायता नहीं फैलाया है कॉपी में. द पर्सन नोज व्हाट ही इज एग्जैक्टली, वो क्या बताना चाह रहा है वो उसको पता है. तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारी आंसर शीट में भी दिखना चाहिए. जितना क्लैरिटी आंसर शीट में रखोगे, उतना ज्यादा मार्क्स फेच करने के स्कोप है. स्कोप इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगेन इट्स नॉट गारंटीड. यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ टीयू. गारंटी किसी भी चीज की नहीं है यहाँ, बट स्कोप, मैक्सिमाइज योर स्कोप. सो आंसर का क्लैरिटी ऐसे ही है कि तुमने अपनी आंसर शीट में केसेस मेंशन कर दिए, सबसे इश्यूज मेंशन करने हैं, ऑब्जर्वेशन मेंशन करनी है, और ऑबिटर डिक्टम मत लिखो. रेशियो डेसिडेंडी, इसमें फाइनली जो रेशियो आया था, क्या जजमेंट है, जजमेंट या रेशियो लिख के प्रॉपरली क्या आया था उस जजमेंट, क्या भी क्या है केस की, वो लिख दो. कि जो भी टॉपिक का तुम आंसर लिख रहे हो, उस टॉपिक का एटलीस्ट 3-4 केसेस तो इट्स यू हैव टू मेंशन. एक इलेबोरेटेड केस होगा, बाकी सबकी तुम रेशियोज, बाकी सबको तुम थोड़ा थोड़ा स्मॉल में करके मेंशन कर सकते हो. कोई एक जो भी तुम्हें लगे कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से इंपॉर्टेंट वो है, वो तुम उसको इलेबोरेट करके मेंशन कर सकते हो. अगेन आई हैव समथिंग टू टेल यू. Yeah, few more tips that I have to give you.
It's taught is all about logic, but ratta ratta is important. Let's face it. So memorize, because has a lot of cases. सो रट के जाना है प्रॉपरली। एक होता है कि तुम्हें कितना आता है, और दूसरा होता है कि तुमने एग्जाम में क्या लिखा है। तुम्हारी नॉलेज जीरो हो सकती है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें कोई आइडिया ना हो सकता है, और तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हो सकता है। आई टेल यू, हो सकता है। सो हियर आई एम टेलिंग यू कि कंटेंट तुम्हें कितना भी अच्छा आता हो, बट अगर तुम्हारा प्रेजेंटेशन बेकार है तो तुम्हें बेकार ही मार्क्स मिलेंगे। एंड फाइनली वो अच्छा कंटेंट मूड कोर्ट कंपटीशन विन कर सकते हो तो अपना अच्छा रिसर्च करके, बट एग्जाम में तो यू हैव टू राइट। एंड फॉर राइटिंग कंटेंट, ऑफ कोर्स कंटेंट पढ़ो अच्छा, एज गुड एज इनरिच्ड कंटेंट तुम्हारे पास हो, बट प्रॉपर उसकी डिमार्केशन, बिकॉज पूरी तुम्हारी आंसर शीट कोई भी नहीं पढ़ रहा। हाईलाइट, not that I'm saying use multiple colors, please don't do it, looks very juvenile. यूज ब्लू पेन, आई यूज्ड ओनली ब्लू पेन। ब्लू में भी शेड्स हैं, थोड़ा सा एक बॉल पेन जो आता है वो, द वन जिससे तुम OMR फिल करते हो, यूज दैट एंड यूज वन नॉर्मल बॉल पेन। सो फॉर हाईलाइटिंग सम पॉइंट यूज दैट OMR वाला बोल्ड कलर पेन, और राइटिंग के लिए आई यूज दिस, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो राइट, हाईलाइट करना है। If you want to use one color, use black, but please don't use multiple colors. Look very childish. Um, कोई भी आंसर लिखो, उसको अपने पॉइंट्स लिखने के बाद, केसेस लिखने के बाद हाईलाइट कर दो। सेकंड, सेकंड प्रिंसिपल्स, किसी भी चीज के प्रिंसिपल्स स्टार्टिंग ऑफ द आंसर में लिख दो प्रॉपरली। तुम्हारा एक पेज पे, आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप, ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट हैज टू हैव सम हाइलाइटेड पॉइंट्स। तुम्हारी पूरी आंसर, तुमने आंसर स्टार्ट करा, राइट डाउन कि तुम जिस बारे में भी लिख रहे हो, वट एवर, इफ इट्स वाइकेरियस लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस, जो भी है, राइट इट डाउन। डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन तुमने मेंशन किया, उसके बारे में कोई भी कंटेंट लिख दिया, अगेन उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए कि क्या एग्जैक्टली एंड यूज, यहाँ पे यूज वेरी प्रिसाइज लाइंस। पूरे आंसर शीट में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, बट स्टार्टिंग ऑफ योर आंसर, द first introductory page, what you call it, first page of your each of your answer has a precise lines. I used RK Bangia. इसमें हर टॉपिक के प्रिसाइज तुम्हें वो मिल जाएंगे कि एग्जैक्ट लाइंस क्या है, इंग्रेडिएंट्स वर्बैटम कोट करना, कोई भी टॉपिक कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, राइट इट इन पॉइंटर्स। इंग्रेडिएंट्स राइट इट इन पॉइंटर्स, एक्सेप्शंस राइट इट इन पॉइंटर्स, सो दैट द पर्सन हु चेक्स योर कॉपी ही नोस कि तुम्हें एग्जैक्ट तो पता है, बाकी बाद में तुम जो भी कहानी लिख रहे हो दैट्स सेकेंडरी। फर्स्ट वर्ड बाय वर्ड कोट करना। एग्जाम्पल अगर दूं मैं तो वाइकेरियस लाइबिलिटी का ही दे रहे हैं, या फिर नेग्लिजेंस, कुछ भी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के। फर्स्ट, व्हाट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, तुमने डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, ये लिख दिया। उसके बाद तुम्हारे इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, वो तुमने कोट कर दिया। अब इनको तुमने फर्स्ट पेज में जो ये चीजें लिख दी हैं, इंट्रोडक्शन में जो ये चीजें तुमने लिख दी हैं, इसको अब तुम्हें अपने आंसर में आगे इसको ही तुम्हें एक्सप्लेन करना है, एक्सपैंड करके। अब इसको तुम कोराबोरेट करोगे अपने केसेस से, कि तुम जो भी कह रहे हो कि इस फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, कि वाई इंजूरिया साइन डैमनम का कॉन्सेप्ट कैसे इनहेंस होकर आया है, कि वाई इफ इट्स अ डैमेज, इफ इट्स इंजरी एंड नॉट अ फिजिकल डैमेज, तभी भी मैं कॉम्पनसेट मुझे क्यों होगा, किस तरीके कोर्ट ने क्या अपना लॉजिक दिया उसके पीछे, यू हैव टू एक्सपैंड इट। सेकेंड, आंसर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आंसर स्ट्रक्चर आई टेल यू, देर इज नो, ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि कोई ऐसा आइडियल आंसर स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बट द वन दैट आई फॉलोड, आई टेल यू, इज इन, कोई भी सेंड यू, RTI करना पड़ता है, मैंने अपनी एक कॉपी RTI की थी, सो मैं वो भेज दूंगी इफ यू वांट सी द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। बाकी यू डू, लिखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन किसी भी चीज की,
इंग्रेडिएंट्स, एक्सेप्शन, मैक्सिम्स जो भी कोट करनी है, ईच ऑफ योर पेज हैज टू हैव सम हाईलाइट। कि पेज जब टर्न होते हैं तो यू हैव टू हैव अ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो कि तुमने लिखे हो। मैक्सिम्स ऑफ कोर्स, मैक्सिम्स आर साइन qua non, आई टेल यू अगेन। मैक्सिम्स कैसे भी रटनी है, बट रटनी है, वो नहीं भूल नहीं सकते, वो याद करनी पड़ेगी। मैक्सिम you've mentioned again, conclusion, I told you it's very important. Cases, सॉरी, मैक्सिम्स के बाद आई मिस्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, केसेस। केसेस में केस स्मार्ट, कोट केस स्मार्ट, बहुत ज्यादा बाहर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। केस स्मार्ट बट मिस नहीं कर सकते, तो केस स्मार्ट प्रॉपरली, केस स्मार्ट में जो भी केसेस दिए हैं, गो थ्रू केस स्मार्ट। आई टेल यू वन थिंग फॉर नाउ एंड आगे की प्रिपरेशन के लिए भी, सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग, केस स्मार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी केस ना तुम्हें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। रीडिंग स्किप नहीं कर सकते, फॉर फ्यूचर लिटिगेटर्स रीडिंग स्किप नहीं कर सकते, यू हैव टू रीड। सो हाईलाइट, अगर तुम केस स्मार्ट से लाइंस कोट करोगे ना, एंड नॉट मच, आई टेल यू, किसी भी एक केस से भी अगर तुमने, लेट्स से तुमने 3-4 लाइंस भी प्रॉपरली कोट कर दी ना अपने आंसर में, इट स्टैंड आउट, इट इनहेंसेस योर आंसर लाइक एनीथिंग। सो दैट इज इट। केस स्मार्ट की पॉइंट्स अगर नहीं हो तो किसी भी सीनियर से उसका केस स्मार्ट मांग लो। पर्टिकुलर्स, पूरा केस अगर नहीं भी पढ़ सकते हो तो एटलीस्ट अंडरलाइन जो भी उसमें इटैलिक्स में लिखा होता है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं आई थिंक, या फिर कुछ समथिंग दैट द ऑथर वांट्स यू टू रीड, वो प्रॉपरली इटैलिक्स में लिखा होता है, तो एटलीस्ट उनको प्रॉपरली देख के पढ़ के लिख के जाओ। वन अनदर थिंग इज, जितने टॉप वीवीआईपी वाले वो हैं, टॉपिक्स हैं, उनके आंसर्स और उनका कंटेंट ऑलरेडी लिख लो कि हाउ योर आंसर शुड लुक लाइक, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या मेंशन करने हैं, देख लो। प्रॉपरली आंसर ऑलरेडी लिख लो और उसको गो थ्रू कर लो। सो इट हेल्प्स जब तुम एकदम एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले बैठोगे रिवाइज करने, 1 दिन पहले आई थिंक रिवीजन स्टार्ट होता है, 1 दिन से पहले तो सिलेबस ही खत्म नहीं होता। सो जब तुम रिवाइज करने के लिए बैठोगे, सो वहां से इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। डोंट पैनिक, योर, आई थिंक sometimes more marks than the actual lack of content, so don't panic. So प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है डीयू के एग्जाम्स में। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। कुछ टॉपिक अगर मान लो एकदम आउट ऑफ द सिलेबस नहीं भी आ रहा है, कुछ भी नहीं, छोड़ना नहीं है। 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन भी 20 मार्क का है, लास्ट क्वेश्चन भी 20 मार्क का है। माई पर्सनल एडवाइस, ऑल द क्वेश्चंस आर कैरिंग इक्वल मार्क्स। सो पहले में 8 पेज और लास्ट में 2 पेज नहीं करना, सारे को इक्वल वेटेज देना, इक्वल टाइम देना। एंड व्हाट द शिटिएस्ट मिस्टेक दैट आई डिड इज कि फर्स्ट उसमें मैं इतना कंटेंट आता है तो अब लगता है कि लिख देते हैं, ये भी लिख देते हैं, ये भी मेंशन कर देते हैं। तो ड्रिवन अवे होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपनी भावनाओं में थोड़ा कंट्रोल। लास्ट क्वेश्चन इक्वल मार्क्स की इक्वल वेटेज है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर देना, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैक्सिमम दैट यू कैन डू इज लीव 1 पेज, उसका कंक्लूजन डाल के दैट यू हैव टू कम बैक, सर्कल बैक टू द कंक्लूजन। सो वो वहां पे छोड़ के यू हैव टू स्टार्ट द सेकेंड क्वेश्चन, बिकॉज पेपर कंप्लीट नहीं होता है, आई टेल यू। एंड क्वेश्चन छोड़ना, इट्स अ डेड गेम। क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, 5 के 5, चाहे वो ए बी के सेक्शन में आए हो। कभी कभी ये लोग बदतमीजी करते हैं, दिल ऐसा गिव यू 10 10 मार्क का क्वेश्चन। हमारे टाइम आईपीसी में ए बी करके ऐसे सेक्शंस में दिल गिव यू क्वेश्चन, ए एकदम ही डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट यूनिट, और सेकंड बी एकदम ही डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट यूनिट हो सकता है। सी आई टेल यू, सब कुछ अज्यूम, मतलब ये मान के जाना कि कुछ भी हो सकता है, अपनी प्रेपरेशन बेस्ट रखना, वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी करके भी अगर सेक्शन अगर ए बी करके भी आया है तो दोनों ए और बी सेक्शन इक्वली बाइफरकेट करके अटेम्प्ट करना। ए अगर आता है तो बी में थोड़ा कम कंटेंट, नहीं ऐसे नहीं चलता है। 20 मार्कर अगर 10 में समराइज, कभी कभी ऐसा होता है ना कि 20 मार्कर तुमने आंसर लिखा, तुम्हें कंटेंट भी 20 मार्क का याद है, बट उन्होंने 10 मार्क में दे दिया है,
सो नाउ यू हैव टू कंसाइज योर आंसर। तुम्हें आता है इसलिए तुम लिखो, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें जो भी आता हो लिखना, सब कुछ थोड़ा छोटा छोटा, बट पूरा पांचों के पांचों क्वेश्चन इक्वली वेटेज के साथ कंप्लीट कर देना। आई थिंक इनफ ज्ञान फॉर टुडे। सो या, दैट्स अबाउट इट। Yeah, I mean, Gyan tha, but we all needed that Gyan, I believe. Because exams are just around the corner. But you very comprehensively covered everything, I believe. कैसे approach करना है इस exam को and how you have to sort of जो भी पढ़ा है हम उसको कैसे paper में लिखे. So I believe that's going to be really helpful. But apart from that, now I think we should start the question answer session, I believe. So आप में से किसी और को कोई क्वेश्चंस वगैरह है, कोई डाउट्स वगैरह है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनी डाउट जो भी आपके मन में हो, बिकॉज सेशन काफी इंटेंसिव था एंड आई बिलीव होंगे कुछ ना कुछ तो डाउट्स। Uh, या आई थिंक आई हर्ड समवन। Hi Risha, मैम। तो Hi. आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, काफी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। द पॉइंट यू टॉक्ड अबाउट ना, रेशियो, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि सर ने समझाया था बट मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया था उस टाइम पे, रेशियो वाली जो बात थी। रेशियो एज रेशियो डेसिनेंडी दैट आई सेड। किसी भी Yes. केस में जब आप केस का स्ट्रक्चर करोगे ना, सो केस ऑब्वियसली, केस में बहुत कुछ ही होता है लिखने के लिए, बट आप सब कुछ मेंशन नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स दैट यू हैव टू मेंशन, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन साइन क्वा नॉन, कि आप छोड़ नहीं सकते। स्ट्रक्चर करोगे तो केस में जो रेशियो होता है कि उसका लास्ट जो कंक्लूडिंग जजमेंट, फॉर एग्जाम्पल बहुत कुछ हुआ कि चला कंक्लूडिंग, आर्ग्यूमेंट्स आए, इश्यूज क्या क्या थे, फैक्ट्स क्या थे, सब कुछ है, बट लास्ट में एग्जैक्ट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत पूरा केस लिखते हैं, बट कहना क्या चाहते हो भाई, वी मिस इट। So that is very important. So you mention it in bold that this is the ratio. ये जज ने इस केस में ये बोला, ये इसका एंड यही है, यहाँ पे ये पूरा ये चीजें आई हैं। अगर उसकी कोई माइनॉरिटी जजमेंट है, इट्स रियली एड्स कि अगर तुम उसकी माइनॉरिटी जजमेंट लिख सकते हो तो, अगर नहीं लिख सकते तो जो भी मेजोरिटी जजमेंट है प्रॉपरली रेशियो करके उसकी जजमेंट कंक्लूडिंग जो जज ने मतलब प्रॉपरली एंड, जिस चीज पे इम्फेसिस करके एंड कर दिया, वो प्रॉपरली आपको वहां से वो लिखनी है। मोस्टली रेशियोज आपको अलग से मिल जाएंगे। मेरा अपना भी चैनल है जिसमें मैंने बहुत सारे यूट्यूब में मैंने केसेस के वो बताए हुए हैं कि अपने भी आंसर्स लिखे हुए हैं कि उसमें एग्जैक्ट केसेस कैसे लिखने हैं, केसेस कहाँ से, मतलब उनका रेशियो क्या क्या है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो अगर मैंने तो। नहीं तो जो आपके लास्ट मिनट केस मार्ट में भी लास्ट, उसमें कंक्लूडिंग, उसमें पैराग्राफ वाइज करके लिखा है, वहां से आप रेशियोज का उठा के लिख सकते हो। अगर आपको केस में कुछ भी ना आए तब भी केस का नाम मेंशन करके रेशियो करके सिर्फ रेशियो लिख के आना है। ये ऑल राइट, दैट्स थैंक यू। डाउट क्लियर हुआ लक्ष्मी, और यू हैव एनी अदर फॉलो अप क्वेश्चन? या, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, फील फ्री टू आस्क। सो एज यू टॉक्ड अबाउट द केसेस ना, कि केसेस के अगर हम सब भूल जाए, और मेरे को पर्सनली फील हो रहा है कि बहुत सारे केसेस है टॉट्स में। तो उसे पढ़ने राइट। के एक बार नो डाउट के साथ पढ़ रही हूँ कि अगर मैं इसे भूल गई तो तो मुझे वही बोलने डाउट के। मत रखो, भूलो। डाउट नहीं है, केसेस भूलते हैं बट इट्स ओके, सब भूलेंगे ना, यू आर नॉट द ओनली वन, सो तो इट्स लाइक ओके। पहले टॉपिक में 8 केसेस है, मैं इस 8 को पढ़ भी लूँ तो सारे तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो प्रायोरिटी किसको दूँ और किस केसेस को ज्यादा अच्छे से, अब जैसे क्वेश्चन से वो सूट भी करना चाहिए, नॉट बिकॉज मैंने पढ़ा है वो मेरे को लिखना है। सो उस पर थोड़ा सा तो मुझे बताओ, केस को कैसे हैंडल करूँ? सो यू आस्किंग कि वेटेज कैसे, प्रेफरेंशियली आप कौन से केस को कितनी वेटेज दो, दिस इज व्हाट यू आस्किंग? या यस। पर्टिकुलर टॉपिक्स में जो भी है, कहाँ से वो केस इंट्रोड्यूस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी, फर्स्ट इफ यू द फर्स्ट टॉपिक यू आस्किंग वाइट वर्सेस जॉन, पी सीतारामैया, इट्स इम्पोर्टेंट।
तुम जब पास्ट ईयर पेपर्स एनालाइज करोगे ना, you'll रियलाइज कि पर्टिकुलर केसेस ही रिपीटेडली आस्क हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से केसेस लेकर आ रहे हैं, वो वही केसेस है जो ऑलरेडी वो पूछ चुके हैं, क्योंकि इतना ही सा टॉपिक है ना। यूनिट 1 कितनी ही है, कितने ही 8 ही केसेस हैं, उन्हीं 8 में से पूछेंगे। जो रिपीटेड पैटर्न है वो देख लो, पास्ट 5 ईयर इफ यूल गो पीवाईक्यू में, सो वो एक पर्टिकुलर यूनिट से उन्होंने कोई एक केस इलाबोरेट करके पूछा होगा, कोई एक केस इलाबोरेट करके पूछा होगा, वो सारे यूल नोट डाउन एंड यूल रियलाइज कि पर्टिकुलर कौन सी यूनिट में कौन कौन से केसेस रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, वो तुम प्रॉपरली करके चले जाओ। वर्क्स। ओके, थैंक यू। All right. Now I think we have a question by Gauri Sharma. She says that can you please share some strategies on how to prepare in such a short time? इतना कम टाइम है कैसे करें? हम नहीं है, बहुत है। Prepare, I think the whole session was about that only. हाँ पूरा strategies तो explain कर दिया. बट अगर आप सब But ने कुछ कुछ मिस किया है तो डोंट वरी, इसका जो पूरा वीडियो है इसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड वी विल, जैसे बाकी सेशंस को रिकॉर्ड करके डाला है यूट्यूब पे, वो डाल देंगे हम. सो एग्जाम प्रेप का जो वर्कशॉप ग्रुप है उसमें जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे एक्टिव, उसको पिन कर सकते हैं. एंड उसमें हम सारे मटेरियल्स भी एंड जो भी सारे वीडियोस है उसको हम लोग अपलोड कर देंगे एंड वील पोस्ट इट. बट या वर्षा, यू कैन ऑल्सो एलैबोरेट लिटिल बिट ऑन दैट. let's subscribe to Dan, and then अरे नहीं, नो आई I think डिडंट that मीन दैट, आई works. मीन ऑन गौरीज क्वेश्चन. But that is not what I'm saying. But yeah, I mean, of course, subscribe, do subscribe. These such a great initiative that he took. Again, summarize. Short time नहीं है यार. Again, I told you, it's just don't panic. PYQ उठाओ. कोई भी सब्जेक्ट, मतलब यार स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. जैसे तुम स्टार्ट करोगे ना, पीवाईक्यू ओपन करोगे, बहुत ज्यादा नहीं तो 3 साल 4 साल का पेपर एनालाइज करोगे. नाउ यू तो हैव दैट आल्सो, जिसमें प्रेफरेंशियली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे रहते हैं. अगेन बाइफरकेट द इंपॉर्टेंट सेक्शन, 5 रिपीटेडली आस्क टॉपिक्स जो कि हैं, उन उन रिपीटेडली आस्क टॉपिक्स में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कंटेंट, वो तुम राइट डाउन करो, मैक्सिमम जो भी है. उसके बाद उससे रिलेटेड केस लॉस. वंस you'll start preparing, no, you'll realize it's not difficult, it's just lengthy. It's not difficult at all. तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे, you'll realize कि चीजें तुम्हें समझ में आ रही है. Now what difficult is, CPC is difficult, you'll see. तो this is not difficult. Start preparing. PYQ से अगर दुक्की फॉलो कर रहे हो तो आई एम टेलिंग यू, दुक्की इज नॉट अ बैड ऑप्शन. there are people, there are classmates, there are people, students that I've seen कि वो properly दुक्की दुक्की में अच्छा content है. जैन, एके जैन आई फॉलोड आई थिंक, उसमें भी अगर तुम रेफर कर रहे हो तो उसमें भी प्रॉपरली समराइज, अगर टॉपिक एक बार ही तुमने दुक्की से भी डू, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, डू वन थिंग, तुम कोई भी टॉपिक दुक्की से उठाओ, एक बार उसको ऐसे स्किम रीड कर लो, गो थ्रू कि क्या कह रहा है, किस बारे में है. एक बार पढ़ने के बाद यूल रियलाइज कि इट्स, तुम्हें समझ आ चुका है कि नाउ क्या 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 लिखना है ना. अभी यू हैव टू अगेन गो टू केसेस कि क्या क्या केसेस में क्या क्या तुम्हें डिस्क्रिप्शन लिखना है. सो नाउ एक बार ही एक आंसर को तुमने पढ़ने के बाद ना यू रियलाइज कि समझ में तो आ रहा है, फिर प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, जैसा कि मैंने पहले बता दिया डिटेल में. ऑल राइट. सो और किसी और को कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं? You all can share on the chat as well. Acha. So Aman Kumar asks, "Ma'am, tell me from today if I start preparing 60% from now onwards if I dedicate my whole time because I was preparing for UPSC side by side." So I mean, सेशन में तो बताया था कि बहुत सारा टाइम है अभी, तो आई थिंक हो जाएगा. 60% आ जाएंगे if you prepare well. बट अनसर्टेनिटी भी रहती है, क्या पता कैसे होगा. अनसर्टेनिटी तो है, बट दैट्स व्हाट यू ऑल आर काइंड ऑफ फॉर. You तो uncertain, it's uncertain of course. Yeah. But yeah, 60, yes, of course. 60, 65, you can score. It's a scoring subject, I'll tell you. This contract, it's a scoring subject. You can score. Jurisprudence में बहुत ज्यादा करने के बाद भी बहुत ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम है. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. बट टॉर्ट बाद में आएगा. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स अभी इस सेमेस्टर में आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट होगा, इफ आई एम राइट. Yeah, इस सेमेस्टर में भी have कॉन्ट्रैक्ट, contract. Yeah. कॉन्ट्रैक्ट
टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट दीज आर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, हो जाएगा। इसमें तो आई टेल यू, केसेस लिख कर आओ, पूरा आंसर, केस लॉज एंड डी यू, उसको बस चाहिए कि तुमने कितने केसेस पढ़े हैं। गिव केसेस, कुछ भी, कोई भी आंसर लिखो, एक केस, दूसरा केस, केस, अपना पूरा आंसर ही केसेस के बेसिस पे अगर तुम रखोगे, सो आई थिंक, एंड डेडिकेट, पूरा टाइम डेडिकेट करने की आई टेल यू जरूरत नहीं है। यू विल गिव इट लाइक अ 4 to 5 hours, बट दैट रिलीजियसली यू हैव टू गिव इट 4 5 hours पर डे, हो जाएगा। नॉट दैट आई एम सेइंग इट्स अ केक वॉक, बट यस, इट्स डूएबल। या आई मीन एंड इसमें तो हमारे एग्जाम कैप्सूल्स है, दैट आल्सो कैन हेल्प ना, कि शॉर्ट में जो सारे केस है उसको बता दे। Yes, yes. Exam capsules are, yes, it's Yeah, I've shared a link help, I think. chat box में. Yeah, I've shared a link on the chat box. उसमें सारे जो एग्जाम कैप्सूल्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के वो मेंशन्ड है, तो आप सब उसको भी रेफर कर सकते हैं. एंड इसके अलावा और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? एंड अगर आपने सेशन बीच में भी ज्वाइन किया हो तो कोई इश्यूज नहीं है, एज आई मेंशन्ड कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. एंड एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरी, यू गाइस कैन फील फ्री. And Varsha, I can also probably share your email ID with some Yeah, लोग yeah, sure, sure. so that अगर बाद में कोई query and all आए लोग के मन में, या someone sees the recording later on, तो वो आपसे पूछ सकते हैं. Sure, sure. Any other query, any other question? जैसे कि मैम मैं पढ़ आंसर. तो हाँ, लेती या हूँ, गो अहेड, गो मैं अहेड. एक बार सारे पढ़ लेती हूँ, मतलब ठीक है, समझ भी जाती हूँ, बट वो याद नहीं होते। और मैंने ट्राई किया है याद करने का। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई एक केस है तो मैंने उसके सब कुछ याद कर लिया, बट अब मेरे को पता चलता है कि भाई वो नाम ही गलत है। लाइक मैंने एक्स केस, मतलब कि अगर किसी केस का एक नाम है तो मैं उसे याद करती हूँ कि वो किसी और केस का नाम था, एंड वो इतना मिक्सअप हो जाता है कि बेसिकली प्रॉब्लम यही है। केस के नाम भी याद हो जाएंगे, केस के फैक्ट्स भी याद हो जाएंगे, बट वो अलाइन नहीं हो पाता साथ में। Happens. It's okay. Happens with everyone. Mix up happens. हाँ, of course, content, मतलब एग्जाम में मिक्स अप होता है। एग्जाम से पहले तो रीराइट, ऐसा तुमने लिख, राइट इट समवेयर सो दैट क्लैरिटी हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जाम से पहले और एग्जाम में क्लैरिटी होना चाहिए। फॉर दैट यू कैन डू इज राइट डाउन द केस लॉ, पूरा नाम, एंड उसके बाद राइट डाउन कि उसमें क्या क्या, मतलब जो भी तुम्हें एग्जाम में लिखना हो एज इट इज। अगर तुम्हारे पास जैसे बहुत टाइम है अभी, तो जैसे फॉर अकॉर्डिंग टू मी यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, सो अभी व्हाट यू कैन डू इज स्टार्ट, कोई भी टॉपिक उठा लो, उसके केसेस में राइट डाउन द केस का नेम, एंड देन फॉलोड बाय कि क्या उसमें ऑब्जर्वेशन, वो तो खैर बाद में लिखोगे, पहले इश्यूज क्या क्या थे। अगर फैक्ट्स लिखने हैं तो थोड़े 4 5 लाइन में फैक्ट्स मेंशन कर दो। फैक्ट्स मेंशन करो क्योंकि फैक्ट से ही पूरा केस याद रहेगा। फैक्ट्स मेंशन करो बिकॉज तुम, अगर फैक्ट की एक भी लाइन तुम्हें याद आ गई तो तुम्हें पूरा केस याद आ जाता है कि अच्छा इस केस में फिर ये याद आया था। फैक्ट याद आएंगे तो इश्यूज याद आ जाएंगे, फिर ऑब्जर्वेशन याद आ जाएगी, फिर जजमेंट याद आ जाएगी। लेकिन अगर फैक्ट भूल गए तो फैक्ट, दूसरे केस का भी अगर फैक्ट सिमिलर है तो फिर वो कंफ्यूज कर हो जाता है। सबसे सही याद रखने का तरीका मुझे लगता है कि जो मैंने फॉलो किया था, दैट आई टेल यू, केस का नाम लिखो, लिख दो नीचे उसके, लिखो प्रॉपर्ली कि क्या क्या है, क्या क्या लिखना है, एक केस, दो केस, टॉपिक लिखो और सारे केसेस मेंशन कर दो, जो भी केसेस लिखने हैं। फिर तुम जब रिवाइज करोगे तो तुम्हें बस अपना टॉपिक याद करना है और उसके नीचे सारे केसेस ऑलरेडी मेंशन्ड है। तुम उसको एक बार, दो बार, तीन बार देखोगे तो तुम्हें एग्जाम टाइम में भी ना अपनी कॉपी याद आती है कि अच्छा इसके नीचे ये वाला केस लिखा था, उसके नीचे ये वाला केस लिखा था, तो तुम्हें वहां से भी याद आ जाता है। सो दिस इज, एंड एक चीज नहीं याद करो, मेक अ बंच ऑफ इट एंड देन रिमेम्बर, सो दैट एक याद आता है तो उसके साथ पूरा बंच यूल बी एबल टू रिकॉल। ऑल बाकी राइट. पढ़ो। एंड वेल, आंसर राइटिंग जो है हम कवर कर चुके हैं, मगर स्टिल आकांक्षा जो है शी इज आस्क्ड ट्वाइस कि एक जैसे फॉर एग्जांपल शी हैज गिवन एन एग्जांपल कि नेग्लिजेंस का जो टॉपिक है
उसे उसे कैसे उसके ऊपर आंसर लिखे ऑर्डर में. सो इन ब्रीफ मे बी इफ यू कैन कवर, बिकॉज आकांक्षा ने 2 बार पूछा है. एंड गौरव इज आस्किंग नहीं, फॉर जुरिस्प्रूडेंस. सो गौरव, हमने जुरिस्प्रूडेंस का सेशन ऑलरेडी करा है. उसका लिंक मैं अभी भेज देता हूँ आपको. एंड मैं पूरा ही आपको भेज देता हूँ. टॉपर का जो नंबर है उसमें है. सो आप उनसे पूछ सकते हैं. इज इंद्रजीत सिंह फ्रॉम सेकेंड ईयर इन लॉ सेंटर 2. सो आई जस्ट रिप्लाई टू योर कमेंट. एंड वर्षा, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन आकांक्षा ने जो पूछा है. एंड या सो नेग्लिजेंस में आई थिंक मैंने कवर तो किया है, बट नेग्लिजेंस में आई टेल यू प्रॉपरली, तुम वही आंसर स्ट्रक्चर सेम ही है, हर क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चर मोर और लेस शॉर्ट में सेम ही है, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही मैक्सिम है, उसकी ही एक्सप्लेनेशंस है, मैक्सिम की एसेंशियल्स है. नेग्लिजेंस पर्टिकुलर टॉपिक में व्हाट यू हैव टू डू इज थ्योरीज ऑफ नेग्लिजेंस कवर कर लो, मीनिंग एंड डेफिनेशंस. उसके नीचे ज्यादा जाने की मतलब रेसिप्सा लिक्विटर कवर कर लो, उसके डेफिनेशन को कवर कर लो. नीचे आए मेडिकल, अगर जो क्वेश्चन है तुम्हारा अगर वो मेडिकल नेग्लिजेंस पे बेस्ड है तो मेडिकल नेग्लिजेंस इलैबोरेट कर लो, प्राइमरी विक्टिम, सेकेंडरी विक्टिम, फिर वहां से उसके केसेस. आई टोल्ड आई थिंक पहले ये हैम्ब्रुक वर्सेस स्ट्रोक एंड पेज वर्सेस स्मिथ इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग. वो जो भी है प्राइमरी विक्टिम, सेकेंडरी विक्टिम, कॉन्सेप्ट कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है नेग्लिजेंस में. अगर मेडिकल की बात करते हैं तो साइकेट्रिक कोलैबोरेटेड है या नहीं, साइकेट्रिक इलनेस कितना, उसका मतलब कितना प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस, कैसे प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस में भी वो तुम इलेबोरेट करोगे. सो आई थिंक नेग्लिजेंस इज अ गुड टॉपिक, आते भी हैं केसेस, आंसर स्ट्रक्चर वही ही रहेगा, बहुत ज्यादा हेवाई नहीं करना है आंसर शीट को. राइट द टॉपिक का नेम, essentials, ingredients, case laws, that's it, conclusion, that's it. आंसर शीट में अगर बहुत ज्यादा हाउ वुड आई से, अगर आंसर शीट में थ्योरीज मत, मतलब ऐसे पैराग्राफ्स मत लिख के आना, ट्राई पॉइंटर्स. सो पॉइंटर्स एंड इलैबोरेशन, वो पॉइंटर लिखा एंड पॉइंटर इलैबोरेट कर दिया, दैट लुक्स क्लीन, दैट फेचेस मार्क्स. All right. Thank you so much, Varsha. And Aman Kumar has asked a question. So ये taught से related question नहीं है. It's a general question. So he's asking कि in short, if you can tell about other subjects, what to do in a way that like which subject is more scoring, and basically he's asking कि किस subject को कितना time हम दे, कितना time dedicate करें किस subject को, ताकि हमारे like overall अच्छे marks आए. For I think that, you that's have what to he's tell asking. me first semester में what were the Yeah. subjects. So So tort we have, was there, contract yeah. is there, कौन सा? IPC, Yeah. jurisprudence. What was the fifth subject? Family law 1. Family law, yes. Yeah. Family law one. Very scoring subject, very easy subject. So किस Jurisprudence सब्जेक्ट is को yes, कितना I'll tell you. प्रायोरिटी दे? That's what he's asking. Yeah, yeah. Good question. Very good question. So yes, Juris, I'll tell you. Wait. Juris, tort, ICA, what else? Family law. What else? One IPC. Yeah. So I'll tell you, khatarnak subject is jurisprudence and IPC. So BNS for you guys. These are the subjects that you should be a little afraid of. Of course, contract B, I don't know, people get a lot of backs in contract. Why? I have no idea. But उसका भी yeah, they सेशन do. कराएंगे. We probably will do a session tomorrow उसके Yeah, ऊपर, I mean, ताकि back to I'll back. tell you what are the yeah. So I'll tell you scoring in easy subjects. Family law, easy and scoring. Family law 2, very difficult, and yeah, scoring तो वो तुम्हारी अपनी potential है. That's a different thing. But yeah, family law 1, it's a very good subject. Properly उसका, इनफैक्ट क्योंकि ना उसमें क्वेश्चंस बहुत प्रिडिक्टेबल हैं. उसका जो मुस्लिम लॉ वाला पार्ट है उसमें से you'll sure shot get one question. You'll get one question and it's not difficult at all. First semester में torts is very scoring, easy and scoring. Family law, easy and scoring. And contract act, easy and scoring. क्योंकि जो भी सिलेबस है ना, ये कट टू कट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं. बहुत ऐसा नहीं है कि तुम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल फैमिली लॉ 2 में यूल गेट अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, वो भी तुम्हें सॉल्व करने हैं. इफ यू आर वीक इन मैथ्स तो तुम्हें थोड़ा डर भी लग सकती है. बट फैमिली लॉ 1 में, सो ट्राई, like what,
स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स सो दैट तुम अपना वो लेवल मेंटेन करो, क्योंकि किसी सब्जेक्ट में कम होएगा, किसी में ज्यादा होएगा. सो जूरस जूरस इज थ्योरी, रट्टा, मोस्टली रट्टा. उसमें भी प्रिडिक्टेबल है क्वेश्चंस, बट इट्स लेंदी. यू हैव टू राइट अ लॉट इन जूरस. जूरस एंड बीएनएस, इट्स थोड़ा सा यू हैव टू स्टडी, मतलब उसमें थोड़ा सा यू हैव टू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट कंपैरेटिवली देन यू हैव टू पुट इन टॉट्स आईसीए एंड फैमिली लॉ. सो दीज थ्री आर रियली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स. तुमने अगर इन तीन में लेट्स सपोज 65-70 प्लस भी कर लिया, तो तुम्हारा जूरस और आईपीसी अगर वहां पे थोड़ा सा कम भी हुआ तो कॉम्पनसेट हो जाएगा. दिस इज हाउ इट इज. एंड ट्राई स्कोरिंग पहले 3 सेमेस्टर में मैक्सिमम मार्क्स, आई एम टेलिंग यू. अभी बाद में कुछ भरोसा नहीं होता है. लास्ट के 3 सेमेस्टर्स में दिल गिव यू अच्छे मार्क्स, दिल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम मार्क्स, बट समटाइम्स अगर खराब किस्मत है एंड यूल गेट बेकार एडीआर का टीचर और यू गेट बेकार मूड का टीचर, सो इट रियली गेट्स डिफिकल्ट. सो ट्राई, पहला 3 सेमेस्टर इज योर ओन मेहनत. सो या, ट्राई स्कोरिंग, डोंट टेक इट लाइटली. Yeah. ट्राई स्कोरिंग. हाँ यार, as much as possible. स्कोरिंग का हमेशा हमारा एम तो ये होना चाहिए कि हाई स्कोर करना है. बाकी वी शुड गिव इन द एफर्ट एंड रिजल्ट के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, एज श्री कृष्णा सेज इन द भगवत गीता, राइट? तो आई थिंक अमन, आपका जो सवाल है उसका आंसर आपको मिल गया. एंड एनी अदर क्वेश्चंस? किसी और को कोई क्वेश्चन है? एंड सेशन के बाद भी अगर आप जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो वी विल शेयर वर्षाज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप बाद में भी उनसे पूछ सकते हैं, नो इश्यूज. बट अभी इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन with respect to this entire session and whatever was covered tonight. I believe किसी को और कोई question है नहीं. So I'll just invite Bhavya to sort of sum up the entire session and you know sort of give a vote of thanks. हम formal तो इतना रखेंगे नहीं, but format वही था. So on to you, Bhavya. I just want to say the session was very insightful. I want to sincerely want to thank Varsha ma'am for simplifying such a vast subject in a leaf-sit manner. I, being a first year student, can say that I have learned a lot and it really sorted the whole thought for me. I have jotted down everything and I can rely on this. And I can tell you that your practical and insightful guidance is definitely going to help students and perform well in the exam. And my sincere gratitude to Abhinandan for leading the session so well. You're wonderful as always. To Thank all you the so much. participants, I want to thank you for joining in and your interaction and made the session more meaningful. And in the end, I want to say that stay connected to WhatsApp group to stay for the further updates in the exam prep decoder series. In the end, I want to say that all the best to everyone and me and Abhinandan since we are in first year. We genuinely need this. Thank you everyone for having me. Thanks everyone. Thanks Varsha. And definitely see you all for another session. And Varsha, we'll definitely want you to also take other sessions. ये तो पढ़ाई का हो गया, but you're an advocate as well. तो जो practical experience है, Definitely. litigation है, तो उसको Definitely, लेके भी definitely. we will love to have you for another session, online, offline, कैसे भी. So thank you so much. Thank you so much guys for joining. It's always delightful to meet, like, or take anything like that you can do for juniors. It's always very delightful. It makes you feel that you're still connected. So that Indeed. connection is, yeah. Nostalgia हो So जाता thank you है. so much for Yeah. having me. Yeah, 100%. No issues. And thank you so much, guys, for joining. Have a great evening. Have a great night. And see you soon in another session. Stay connected. Thank you.